morning, dear students. In last lecture, we have discussed an important chemical formulas of inorganic compounds, and all the student gave me a best work about this point. So I will congratulate to all the students about their perfectness. Okay, about their perfections. Okay, now the basic need of equivalent mass is here. Then in today's lecture, we will discuss an important topics of for the calculation of concentration. The method number 2 is here. It is normality. We have discussed the molarity. We know that the formula of molarity, gram per liter into molecular mass of solute. Now we are in normality. For before starting the definition of normality, first of all we will give the formula for normality. The formula is here: mass of solute divided by volume of solution into equivalent mass of solute. Equivalent mass of solute. If solution is in liter, then we cannot write 1000 here. Very simple formula. Students, आप सबको मोलारिटी की फॉर्मूला अगर आती है तो नॉर्मलिटी की फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं. उसमें मोलेक्युलर मास था, इसमें इक्विवेलेंट मास है, दूसरा कुछ भी नहीं. सो द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. This is the formula for finding normality. Is it clear to all? This is our normality. But if we will discuss about the other formulas are here. Just see normality. Formula number 1. Normality. Formula number 2 is here. Mass of solute into 1000 divided by volume of solution, which is in ml, into equivalent mass of solute. Now we know that how can we find equivalent mass of any compound. So this is the second formula for the calculation of normality. If the volume is given in milliliter, then we will use this formula. If the volume is given in liter, then we will use this formula. Okay, formula number 3. N1V1 is equal to N2V2. In molarity also we have discussed this type of formula, which is N1V1 is equal to N2V2, but now it is normality, so N1V1 is equal to N2V2. Okay, so this is the different type of formulas for the calculation of normality. Okay, now what is the definition of normality? Just see. If in 1 liter of solution, 1 liter of solution, we can dissolve equivalent mass is equal to mass of solute. Just see. If we dissolve mass of solute in 1 liter of solution, but at that time equivalent mass and mass are same. Just see the example. If we will dissolve 40 gram NaOH in 1 liter solution, 40 gram NaOH, so the mass of solute is 40 gram. Equivalent mass of NaOH is also 40 gram. So 40 divided by 40 and volume of solution 1 liter, अब we cancel. Then what is the final answer? ये सब कुछ cancel होने के बाद अब जो cancel नहीं जा सकते, and the final solution will become, it is one normal solution, one N solution. So
if we dissolve, mass of solute is same as equivalent mass of solute in 1 liter of solution. At that time the solution will prepare, it is known as one normal solution, that is its normality. So this is the formula for finding normality. Normality is equal to mass of solute divided by volume of solution into equivalent mass of solute. Is it clear? आप सबको क्लियर हो रहा है नॉर्मलिटी की फॉर्मूला? वेरी सिंपल, यहाँ पर आपकी फॉर्मूला है, अगर जिस भी स्टूडेंट्स का मोलारिटी आती है उसे नॉर्मलिटी आएगी ही, बिकॉज हम मोलारिटी में मोलिकुलर मास लेते हैं और नॉर्मलिटी में हमें इक्विवेलेंट मास यहाँ पर लेना है। सो ये हो गई नॉर्मलिटी की बात। और यहाँ पर हम नॉर्मलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सोल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको सोल्व करने के लिए देने वाला हूँ। चलिए अभी हम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 इज हियर। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड नॉर्मलिटी of 8 gram NaOH in 1 liter solution. Okay, normality is equal to mass of solute. What is mass of solute? It is 8 gram upon volume of solution, it is 1 liter, and the equivalent mass of NaOH is 40. So 8 divided by 40 means 1/5. 0.2 is the final answer of first numerical. Very simple numerical is here. Let's find normality for the solution NaOH in 1 liter. The second important point that you have to do yourself. This is for your homework. Okay, now third one, just see. Normality is equal to mass of solute, it is 16 gram, upon volume of solution, it is in ml 500, so we can multiply it with 1000. Okay, and the equivalent mass of H2SO4 is 49. I think you all remember this important point. Molecular mass divided by basicity of an acid, and the basicity of H2SO4 is 2 and molecular mass is 98, so 98 divided by 2 and it is 49. So solve this numerical. This is numerical number 3. इसका कंक्लूजन आपको कर देना है, ठीक है। फोर्थ वन आपको फिर से मैं एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, ये आप सबको अपने आप ही कर देना है, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ 5 नंबर का न्यूमेरिकल। कैलकुलेट फाइनल नॉर्मलिटी of 0.1 normal 50 ml HCl. So N1V1 is equal to N2V2. 0.1 normality is given, 50 ml volume is here. We have to find final normality after adding 20 ml NaOH. यहाँ पर हम N1V1 plus N2V2 is equal to N3V3 वाली मेथड नहीं ले सकते हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन नॉर्मलिटी फाइंड करनी है और एक नॉन नॉर्मलिटी दी हुई है, इसलिए सिर्फ N1V1 is equal to N2V2 का ही यूज होगा। तो ये N2 हमें मिल जाएगा 0.1 into 50 divided by 20, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो आप सबको कर देना है। तो यहाँ पर ये N1V1 और N2V2 वाली फॉर्मूला यहाँ पर आ गई। अभी एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मोलारिटी की फॉर्मूला कौन सी थी, तो ये वाली थी, ग्राम पर लीटर अपॉन मोलेक्युलर मास थी, ठीक है, ग्राम पर लीटर अपॉन मोलेक्युलर मास mm। जस्ट यहाँ देखिएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलेक्युलर मास, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन नंबर 1 इनटू 2, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए इसमें मैं ग्राम पर लीटर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ग्राम पर लीटर का तो क्या रहेगा, मोलारिटी इनटू मोलेक्युलर मास। तो यहाँ पर ग्राम पर लीटर की जगह में रख देता हूँ मोलारिटी इनटू मोलेक्युलर मास
अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखिए बहुत ही अच्छी फॉर्मूला आपके सामने आ गई। मोलारिटी और नॉर्मलिटी का दोनों का रिलेशन कौन सा है, तो रिलेशन आपके सामने यहाँ पर आ गया। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m into molecular mass upon equivalent mass. So we can solve this formula with the help of normality. We can find molarity or we can find molarity with the help of normality. अगर नॉर्मलिटी दी हुई है और मोलारिटी फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। और इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी रख देता हूँ। चलिए देखिए 6 वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर हम रखते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके से हम जज करते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर शायद कर देता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ वहाँ पर से कितना बोर्ड कवर हो रहा है। तो यहाँ पर से 6 नंबर का न्यूमेरिकल मैं नीचे ही यहाँ पर सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए 6 नंबर का न्यूमेरिकल ये है, फाइंड मोलारिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। क्या फाइंड करना है हमें, मोलारिटी फाइंड करनी है। फाइंड मोलारिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। तो ये रहा नहीं फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है ही। देखिए ये है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। देखिए यहाँ पर नॉर्मलिटी कौन सी दी हुई है, 0.1। मोलारिटी हमें फाइंड करनी है। मोलिकुलर मास H2SO4 का क्या रहने वाला है, 98, और इक्विवेलेंट मास यहाँ पर क्या रहने वाला है, 49। आंसर आ गया। अगर आप सबको यहाँ पर मोलिकुलर मास काउंट नहीं भी करना है तो भी आंसर आ सकता है। किस तरीके से आंसर आ सकता है, देखिए यहाँ पर मोलिकुलर मास के लिए x सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास के लिए x/2 रहेगा क्योंकि H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। तो x/2 करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो 2 है वो ऊपर गया और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड हो गया। 0.1 डिवाइड बाय 2 मींस 0.05 is a final molarity. So this is a new formula from which we can easily decide molarity on the basis of normality. So this is the second important thing that we are discussing here. It is the normality. So second important method for the calculation of concentration. First वाली जो हमने की हुई थी वो molarity थी। Second वाली यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो ये नॉर्मलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको शायद ये भी सब कुछ मालूम हो सकता है कि डेंसिटी अगर हम जानते हैं तो भी हम उसकी वजह से मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए ये नॉर्मलिटी की सेकंड मेथड मैंने आपको करवा दी है। जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए वो आप सबको करना है, और ये सभी जो वर्क है वो 2 टाइम्स लिख के कपिल सर को सबमिट करना है। पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये एग्जाम्पल है वो सिर्फ एक ही टाइम गिनने हैं, और ये बाकी की जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो आप सबको 2 टाइम्स लिखने हैं। फॉर्मूला अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है ताकि आपका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला किस तरीके की है। आज के लिए इतना ही। ये बोर्ड पे जो लिखा हो उसकी इमेज मैं आप सबको सेंड कर देता हूँ। इतनी फॉर्मूला आप सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी।